Hello दोस्तों, welcome back to my channel called Motivation by Vishal Modi. And first of all, let me wish you all a very happy International Happiness Day. Yes, 20th March is celebrated as International Happiness Day just to create awareness about how much importance of happiness has in our lives. अब आज हम हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हैप्पीनेस विच विल हेल्प यू मोर टू बी मोर हैप्पी, मोर कंटेंटेड, मोर फुलफिल्ड एंड मोर सेटिस्फाइड। मैं काफ़ी साल से रिसर्च कर रहा हूँ हैप्पीनेस के बारे में एंड कुछ ऐसे फैक्ट्स मुझे मिले हैं जिसे जानकर मैं खुद बहुत खुश हो गया था। और आज खुशी का दिन है, तो इसके लिए मैं आपके साथ भी कुछ रीज़न शेयर करने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ, कुछ हैक्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप भी और खुश रह सकते हैं। सो पहला फैक्ट है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आपने सुना होगा काफ़ी लोगों को कहते हुए कि मनी इज़ नॉट अ रीज़न ऑफ बीइंग हैप्पी। एंड एक रिसर्च से पता चला है जो अमेरिका में हुआ था, जहाँ पे रिसर्चर्स ने ये बताया है कि देयर इज़ अ स्वीट स्पॉट इज़ इफ़ यू आर अर्निंग बिटवीन $60,000 to $80,000 a ईयर। अगर आप इस इनकम ब्रैकेट में हैं दोस्तों, तो इसके बाद द सर्टेन इंक्रीमेंट ऑफ इनकम इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इंक्रीमेंट इन हैप्पीनेस। येस, दिस इज वॉट रिसर्च हैज सेड, दिस इज वॉट द स्टेटिस्टिक्स हैज सेड। सो अगर मैं इस पे परचेसिंग पावर पैरिटी का रूल लगाऊं, तो इंडिया में अगर आप 85,000 रुपीज़ से 1,10,000 रुपीज़ के बीच में कमाते हैं तो आप खुश रह सकते हैं। इसके ऊपर की एनी इंक्रीमेंट is not going to make you more happy. Rather, in certain situations, it has affected negatively. So I feel you don't need lot of money to be happy. Second fact है दोस्तों, I was shocked to know. What do you think? Which stage of life a person is happiest? बचपन, जवानी या बुढ़ापा? I was shocked to know this, that the initial age of life, the initial stage of life, when we are children, when we are kids, is the happiest stage of life. But as we grow up, as we become teen, as we reach to our midlife, that is one of the worst phase of life. People are not happy then. But the good news is, after you cover the mid age, you start being contented, you start being satisfied, और बाद में आपकी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता जाता है टिल यू डाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रहा है। सो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट फेज ऑफ लाइफ इज आफ्टर 50s। People are more happy when they are contented, when they are fulfilled, and they start, being friendly with what they want to be. They know what important is in their life, and they start running behind them rather than seeing people, and accomplishing things which they really don't need. The third fact about happiness is, do choices, more alternatives make us happy? What do you feel? There is a concept called paradox of choice, and psychologists believe that if you have more choices, अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वो आपका दुख का कारण है। Yes, if you have more choices, then we are lost in options. We are lost in alternatives. We always keep wondering about अगर ये नहीं किया होता और वो किया होता तो, and this leads to stress. So more choices, more options leads us to stress and unhappiness. फैक्ट नंबर 4 है हैप्पीनेस पाई। नाउ व्हाट इज दिस हैप्पीनेस पाई? ये एक और चौंकाने वाली फैक्ट है। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मुझे ये पता चला कि हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम कितने खुश हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 50% ऑफ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अमॉन्ग आर हैप्पीनेस इज आर जीन्स। दैट्स नॉट इन आर हैंड. So there are people who are born happy and there are people who are born sad. So 50% is genes, 10% is outer circumstance that is not in your hand. But then the good news is 40% फिर भी आपके हाथ में है. The choices that you make, the things that you do in your life, the way of life that you lead makes you happy or unhappy. But yes, there are people who are born sad and there are people who are happy and वो कोई भी कंडीशन में खुश रहते हैं.
So this is one of the amazing fact which will make you feel happy about yourself. And the last fact is fact number 5, and this is gonna be amazing. It blown my thought. Psychologists कहते हैं that we have a happiness baseline. Everyone has a happiness baseline. And if something brings you happiness, let's say buying a car, okay, or getting married to someone whom you love, or having a kid, and so at that time that would be a jolt of happiness on your baseline. So let's say if your baseline is here, अगर आपने कुछ पाया अपनी ज़िंदगी में तो वो आपको एक जंप देगा, एक हाइक देगा. बट देन आफ्टर certain time, this subsides back to your baseline. And this is not only in case of happiness, but in case of sadness, in case of any bad event also. So अगर आपकी baseline इधर है और आपके साथ कुछ खराब बना कोई event बना, then हो सकता है कि आपकी खुशी नीचे चली जाए, but it would be for certain time only. Again you will come back to your basic baseline of happiness. ये happiness line सबकी होती है और हम उस baseline पे वापस आ जाते हैं. एक रिसर्च हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था लोगों पर, और उस एक्सपेरिमेंट में देयर वाज अ पर्सन हु वॉन अ लॉटरी एंड देयर वाज अ पर्सन हु लॉस्ट हिज लेग. उन दोनों को दोस्तों पूछा गया 1 साल के बाद कि कौन ज़्यादा खुश है. एंड आप यकीन मानिए, इट वॉज नॉट द पर्सन हु वॉन द लॉटरी, रादर इट वॉज नॉट ऑल्सो द पर्सन हु लॉस्ट हिज लेग, बट देयर बोथ हैप्पीनेस लेवल वर सेम आफ्टर अ ईयर. सो अगर आपके दोस्त ने, आपके पड़ोसी ने कौन बनेगा करोड़पति जीता है, तो ठहर जाइए, कुछ दिन के बाद वो उसी लेवल की खुशी पे आ जाएंगे जिस लेवल पे वो बिना जीते थे. सो ये हमारी 5 फैक्ट्स हुए. अब मैं आपको कुछ हैक्स देने वाला हूँ जो आपको खुश रहने का ज़रिया बताएंगे. आप कैसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं वो बताएंगे. सो नाउ अब करना क्या है, आपको क्या करना है ज़्यादा खुश रहने के लिए. मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करने वाला हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिसर्च विच हैज़ बीन डन ऑन मैनकाइंड. 75 years old research, and the researchers studied the life of people. Life of 750 people was studied. नॉर्मली इतने बड़ी रिसर्च चलते चलते बीच में बंद हो जाती है. कितनी बार रिसर्चर्स मर जाते हैं या वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, कितनी बार फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, और काफ़ी अलग अलग रीजन से कितनी बार रिसर्च बंद हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है बीच में. सो लकीली ये रिसर्च 75 ईयर्स तक सर्वाइव किया और इसके आउटकम्स थे जो शॉकिंग थे. दे फाउंड दैट द बिगेस्ट रीज़न ऑफ बीइंग हैप्पी इज़ नॉट मटेरियल्स. द बिगेस्ट रीज़न ऑफ बीइंग हैप्पी इज़ नॉट मनी और फेम. द पीपल हु आर हैप्पी टिल द एंड ऑफ देयर लाइव्स were people who were into healthy relationships, who had a community to talk to, who had friends to deal with. Loneliness kills. Loneliness breaks you. Rather, a good relationship, friends, protects you. It's not only good for your health, physical health, but for your brain as well. It keeps your memory sharp. It keeps you active. So the first outcome is socialize as much as you can. Go and talk to people. कितना डिफ़िकल्ट है जब आप लोगों से मिल रहे हो तब अपना मोबाइल फ़ोन साइड में रख के उनसे बात करना. कितना डिफ़िकल्ट है उस दोस्त को या उस भाई को कांटेक्ट करना जिससे आपने सालों से कांटेक्ट नहीं किया. बहुत कॉमन है ये छोटे झगड़े, फालतू की बहसें हमारे सबके घरों में. बट क्या हम उसको कुछ पल के लिए साइड में रख के और कांटेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशंस को जिनसे हमने काफ़ी सालों से बात नहीं की है? क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं उनसे? बिकॉज ये आपके सेहत के लिए, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है. इट विल कीप यू लिव लॉन्ग. इट विल मेक यू लिव लॉन्ग. इट विल कीप यू फिट. इट विल कीप यू हेल्दी. सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव लॉन्गर, then socialize as much as you can. And the second hack is gratitude. Be thankful to the people around you. कितनी बार थैंक यू बोलते हैं हम हमारे इर्द गिर्द लोगों को? कितनी बार आपने अपने पेरेंट्स को जाके थैंक यू कहा है, उन्होंने जो भी किया हो आपके लिए? क्या आपने कभी अपने सर्वेंट को, अपने सिक्योरिटी गार्ड को, अपने वॉचमैन को, टीचर को जाके थैंक यू कहा है?
लास्ट आपको याद है आपने उस फ्रेंड को कब एक थैंक यू मेल या थैंक यू एसएमएस किया था? So the second reason, second hack for being happy is saying thank you to the people around you. Appreciate for whatever you have got in your life. Say thank you to God. So the second task that I am going to give you is you need to say thank you. कोई भी एक दोस्त को, कोई भी एक पेरेंट को, write a beautiful SMS, a message, and then comment me how you are feeling about it. नीचे आप कमेंट कीजिए and let me know if you have expressed gratitude and what you felt, what was his or her response. आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ शेयर टू मी. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ 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 share this video as much as you can. Thank you once again.